Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. We bless you. We glorify you. Lord, we magnify you. We come again in your presence, Lord. We come again to worship you, appreciate you. Lord, just to say that we love you. Hallelujah. And that we are very appreciative, very thankful to you, Lord Jesus, for your kindness, grace, mercy, love towards us. Hallelujah. Even though we don't deserve any goodness, any kindness, any mercy and favor that you bestow upon us, Lord. So, Father, we come before you acknowledging your love, your kindness, and your goodness to us, and also confessing our nothingness, Lord Jesus. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. हालेलुया. दिया जीने को रंग रंग रंग, रूह पाक किया संग संग संग, चौपान बनावो. एक अजब खुशी अनोखा मसा, दिल जान बनावो. संग लिया अंग संग लिया, यीशु ने दिया अपना जहन, दिया अपना मसा, मोहे अपना रूप दिया. रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया. यीशु ने दिया अपना जहन, दिया अपना मसा, मोहे अपना रूप दिया. रंग लिया मोहे रंग लिया. हालेलुया. अब जीना मसीह मसीह मसीह, और मरना नफा नफा नफा, कहता हूँ यही. अब जीना भी क्या यीशु तेरे बिना, कहता हूँ यही. रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया. यीशु ने दिया अपना जहन, दिया अपना मसा, मोहे अपना रूप दिया. रंग लिया मोहे रंग लिया. हालेलुया. Thank you, Jesus. Lord, we sing the songs of your blood. We sing the praises of your precious blood. Lord, how majestic, how glorious, how awesome, and how mysterious and amazing is your blood. We will never fathom the glories, the majesty, the honor, the power, the virtue, the strength of the blood of the Lamb. सो खुदावंद, हम उस लहू के नीचे अपने आप को झुकाते हैं, उस लहू की धार के नीचे. उस लहू में हमें छिपाइए. हम में से एक एक उस खून की धार के नीचे रखिए खुदावंद. आज की शाम तेरे लहू की धार में धुलना चाहते हैं, तेरे कलाम के निर्मल पानी से धुलना चाहते हैं. खुदावंद, अपने लहू का प्रकाश दे, अपने खून का प्रकाश दे. गिव अस ए ग्रेटर रेवलेशन of the blood of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Unleash that revelation, Father. Unleash the revelation of the blood of Jesus this evening. Father, the majestic, glorious revelation. Open our hearts and open our eyes to see how powerfully your blood combats the forces of darkness even when we don't realize.
that your blood wages an intense war in the realm of the spirit against all the forces of darkness, the hell, the Hades, all the watchers and the gatekeepers of Hades quake, and heavy dread falls on them when they see your children walk under the blood. There is victory in the blood alone, Lord Jesus. So teach the power of your blood to your people. Open up our hearts, Lord, to receive the revelation of the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you. We give you praise. Lord, before we get into your word, we pray, Lord, I join all these brothers and sisters who have logged online with me, that we all come before you to humble ourselves. Father, the innate propensity of arrogance and pride that dwells on the inside of us, may you remove it. And Father, there is the presence of besetting sin that your word says in the book of Hebrews, that the sin that so easily besets, Father, that besetting sin that lurks in our organs and stalks around us at all times, may you unleash your power and deliver us from the incarceration of that besetting sin this evening. May we be liberated by the power of the amazing blood of the Lamb this evening, Lord. Hallelujah. तेरे कलाम की कुदरत खुले खुदावन, तेरा नाम ऊंचा हो यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जैसे आपने मेरा पोस्ट पढ़ा होगा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के खून की कुदरत के विषय में आज हम बातें करेंगे, और यीशु मसीह की स्कर्जेस, यीशु मसीह की पीठ पे पड़े कोड़ों के विषय में हम मनन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल खोलें। टर्न योर बाइबल्स एंड ओपन अप एट बुक ऑफ जेनेसिस। उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए जल्दी से। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 6, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय निकालिए। जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा वर्स नंबर 14। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय और 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उत्पत्ति जेनेसिस 6:14। प्लीज ऑल्सो इंडिकेट इन द मैसेज सो दैट पीपल कैन कैच इट। उत्पत्ति 6 की 14। मेक दी एन आर्क ऑफ गोफर वुड, रूम्स शेल्ट दाउ मेक इन द आर्क, एंड शेल्ट दाउ पिच इट विद इन एंड विदाउट विद पिच। परमेश्वर अपने भक्त नूह को आदेश देता है, पूरा ब्लूप्रिंट देता है परमेश्वर, एवरी माइन्यूट डिटेल एंड एवरी लिटिल डिमेंशन प्रभु देता है, और पूरा आर्किटेक्चर, पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा एरोडायनामिक्स, सभी कुछ प्रभु समझाते हैं आर्क ऑफ द कवनेंट बनाने के लिए। जब आर्क मुकम्मल होती है तो प्रभु एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं। प्रभु कहते हैं, दाउ शैल्ट पिच विद इन एंड विदाउट विद पिच। हिंदी में शायद राल शब्द है, राल वर्ड है, लेकिन इस वर्ड्स में 2 बार एक वर्ड आया है जो हिब्रू लेक्सिकन में H3722 है। वर्ड नंबर H3722। आप हैरान होंगे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है दाउ शैल्ट पिच इट विद इन एंड पिच इट एंड विदाउट विद पिच। इसको अंदर से भी पिच लगाना और बाहर से भी पिच लगाना। हिंदी में लिखा राल, लेकिन आप हैरान होंगे कि हिब्रू वर्ड जो है वो है H3372, और हिब्रू वर्ड है कफार। क्या वर्ड है? कफार। आपको मालूम कफार हिब्रू वर्ड का मतलब क्या होता है? कफार का मतलब होता है अटोनमेंट, प्राश्चित, क्षमा, माफी। हालेलुया। उर्दू में हम गाते हैं, मेरे गुनाह का कफारा यीशु, जान मेरी का सहारा यीशु, रूह से कहो आमीन, रूह से कहो आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा कफारा है। कफारे का मतलब अटोनमेंट। ये जो वर्ड है कफार, पिच, दिस राल इज रेड क्रिम्सन तरह का एक पेस्ट है।
कई किस्म की खास रेजिन्स हैं जिसे ब्लेंड करके बनाया गया है, और ये कफार यीशु मसीह के लहू को दिखाती है। नूह ने जो किश्ती बनाई गोफर वुड की, परमेश्वर ने उसको अंदर से और बाहर से मुकम्मल तरह से खून के अंदर क्या कर दिया, पेंट कर दिया। वो आर्क ऑलमोस्ट 1 साल रही पानी में, 1 ईयर, लिटिल लेस देन 1 ईयर। वेदर को, स्टॉर्म को, पानी को, एटमॉस्फेरिक चेंजेस को, जियोलॉजिकल चेंजेस को, सब कुछ को उस आर्क ने बर्दाश्त किया, क्योंकि आर्क को अंदर और बाहर से क्या लगाया गया था, ब्लड। हालेलुया। ब्लड का मतलब लिटरल ब्लड नहीं बोल रहा हूं मैं, कफार वर्ड, अटोनमेंट, ब्लड श्रीखा, क्रिम्जन पेंट लगाया गया, अंदर से और बाहर से उस आर्क को प्रोटेक्ट किया गया। हालेलुया। और मैं चाहता हूं आप एक वचन पढ़ें मेरे साथ। मैं आपको बता रहा था वो वचन 2-3 दिन पहले, अगर आपको याद होगा, कि आर्क ऑफ द कवनेंट जो थी, कैसे उसको कैप्चर कर लिया फिलिस्टाइंस ने। क्यों आर्क ऑफ द कवनेंट इज़राइल को छोड़कर चली गई? क्योंकि एली के बच्चे लुच्चे थे, वो परमेश्वर की पवित्र ऑफरिंग को सैक्रिलेज करते थे, अपवित्र करते थे, और जो टेंट के डोर के पास औरतें होती थी उनके साथ व्यभिचार करते थे। सेक्सुअल इमोरालिटी थी परमेश्वर की टेंपल में, परमेश्वर की टेंपल में इम्प्योरिटी थी, परमेश्वर की टेंपल में करप्शन थी, परमेश्वर की टेंपल में बुराई थी, बदकारी थी। जो एरन की लिनेज है, प्रीचली लिनेज, उसको यहोवा ने रद्द कर दिया, क्योंकि एरन की लिनेज के याजकों ने बदकारी की, पाप किया, और यहोवा परमेश्वर को क्रोध दिलाया। इसलिए यहोवा परमेश्वर उन्हें छोड़ गया। और वो आर्क ऑफ द कवनेंट, मैंने आपको बताया, परमेश्वर के अहद का संदूक, हालेलुया, वाचा का संदूक, देख रहे हैं आप, अहद का संदूक, हालेलुया, जो याजकों के कंधे पे जाता है, वो अहद के संदूक को अन्य जाति के लोग उठाकर ले गए, फिलिस्तीन्स, और उन्होंने उस अहद के संदूक को जाके अपने सबसे बड़े देवता की टेंपल में रख दिया, दागोन की। बहुत बड़ी ऊंची छत के अंदर छत थी वो, जहां पे टेंपल थी। लेकिन यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, जो करूबों पे विराजमान रहता है, यहाँ पे उसका जलाल छाया करता है, उसके जलाल ने उनके देवता की गर्दन तोड़ दी। जब सुबह हुई तो उनका देवता टुकड़े हुआ आर्क ऑफ कवनेंट के आगे पड़ा हुआ था। मैं किसी समय आपको बताऊंगा द जर्नी ऑफ द आर्क ऑफ द कवनेंट, the places where the Ark of the Covenant traveled, and all the incidents that happened, and how ultimately the Ark came back to its resting place. हालेलुया। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ आर्क कहाँ पहुँची है, ऐद का संदूक कहाँ चला गया। पढ़िए मेरे साथ आप पहला सैमुएल, उसका आप 6 अध्याय निकालिए, 1 सैमुएल चैप्टर नंबर 6, एंड लेट मी रीड फॉर यू वर्ड्स नंबर यार पूरा काफ़ी पढ़ने पड़ेंगे ये वचन, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ अभी जल्दी से। आप पूरा 6 चैप्टर पढ़िएगा बाद में खुद, 1 सैमुएल चैप्टर नंबर 6। लेट मी रीड फॉर यू वर्ड्स नंबर 19, 19 वचन पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? एंड ही स्मोट द मैन ऑफ बेथशेमेश। कहाँ पहुँच गई आर्क ऑफ द कवनेंट? एक टाउन में पहुँची, उस टाउन का नाम है बेथशेमेश। शेमेश का मतलब होता है सन, सूर्य को हिब्रू में शेमेश कहते हैं। बैत शेमेश का मतलब सूर्य का घर, अर्थात ये वो जगह है जहां अन्य जाति के लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं। चढ़ती तरफ को टेंपल का चेहरा फेस है, और अन्य जाति के लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उस जगह परमेश्वर के अहद के संदूक को ले आए। तो लिखा है यहोवा परमेश्वर ने बैत शेमेश के लोगों को मारा, एंड ही स्मोट द मैन ऑफ बेथशेमेश। बेथशेमेश के लोगों को यहोवा ने मारा। क्यों मारा? बिकॉज दे हैड लुक्ड इनटू द आर्क ऑफ द लॉर्ड, इवन ही स्मोट ऑफ देम, स्मोट ऑफ द पीपल 50,310। यहोवा परमेश्वर ने बेथशेमेश के अंदर बहुत बड़ा नरसंहार किया। वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर ने 50,000 और 70 लोगों को मार दिया, नाश कर दिया। यहोवा परमेश्वर ने क्यों कर दिया? क्योंकि उन लोगों ने एक दुराचार किया, एक पाप किया। परमेश्वर की पवित्र आर्क, ये जो आर्क थी, ये इस्राएली लोगों की लाइफ लाइन थी। टेंपल की विशेषता यही है
क्योंकि ये जो आर्क ऑफ द कवनेंट है, इसके ऊपर करूब बने हैं, चरबम, और ये चरबम इस तरह के हैं, ऐसे दिखते थे, चरबम ढके थे। उन्होंने मुंह अपने नीचे की ओर किए, ऐसे मुंह नीचे की ओर किए, और ऐसे चरबम की आंखें खुली हुई थी, वो नीचे की ओर देखते थे। क्यों? क्योंकि इसके ये जो जगह है, ये आर्क ऑफ द कवनेंट पे आप देख रहे हैं, इस जगह को कहा जाता है मर्सी सीट, करुणा की जगवेदी। ये जगह जो है, इस जगह पे महायाजक हर साल एक दिन, जब योम किपुर का दिन आता है, जिसे प्रायश्चित का दिन बोलते हैं, महायाजक अपने लिए सबसे पहले बुल का ब्लड लेके जाता है। किसका ब्लड? बुल का। बुल के ब्लड को लेके जाता है अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, हालेलुया। और फिर जानवर का ब्लड लेके जाता है इस्राएल के पापों के लिए, और उस लहू को ये महायाजक कहां उंडेल देता है? इस जो मर्सी सीट है, इसके ऊपर ब्लड को उंडेल देता है। वो ब्लड यहां उंडेला जाता है, और उस ब्लड से इस्राएली प्रजा के पाप एक साल के लिए ढांप दिए जाते हैं। क्यों यहोवा परमेश्वर ने आदम के पाप के बाद जानवरों का लहू स्वीकार किया? क्योंकि जानवरों ने यहोवा के खिलाफ बलवा नहीं किया। जानवरों ने पाप नहीं किया, आदम ने पाप किया, लेकिन जानवरों ने अदन के बाग में यहोवा के वचन के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। तो यहोवा ने जानवरों के ब्लड को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जानवरों का खून मनुष्य के खून से इंफीरियर है, घटिया है, इसलिए जानवरों का लहू मनुष्य के पाप की अटोनमेंट नहीं कर सकता। जानवरों का लहू मनुष्य के लहू का कफारा नहीं है। कफार शब्द उत्पत्ति 6:14 में जो नूह ने पिच लगाई, राल लगाई, वो वर्ड है कफार, ब्लड। बिल्कुल क्रिम्सन रंग की रेजिन्स लगाई, जिसने नूह की किश्ती को प्रोटेक्ट किया। नूह की किश्ती के अंदर 8 लोग और सारी सृष्टि जो यहोवा ने बनाई सब बचाई गई और फ्लड से पार हो गई, क्योंकि उस आर्क का कफारा हुआ था। हालेलुया, अटोनमेंट हुई थी। हाले बिना अटोनमेंट के, बिना कफारे के कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। बैत शमेश के लोगों ने क्या किया? क्यों यहोवा का क्रोध भड़का और क्यों 50,070 लोग मारे गए? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अहद का ये जो संदूक है, इसके ऊपर लहू होता है जानवर का। हालेलुया। और उस लहू को दूत ऐसे हैरानी से देखते हैं, क्योंकि वो लहू क्या करता है? मनुष्य का जो पाप है उसका केवल सूद अदा करता है, वो जो इंटरेस्ट लगता है। ओरिजिनल पाप का दंड वहीं का वहीं था पुराने नियम में, क्योंकि बकरों, छतरों, मेमनों का खून मनुष्य के पाप धो नहीं सकता, केवल ढांपता था। इसलिए हर साल जानवरों के बलिदान की ज़रूरत थी। इसलिए इस्राएली लोगों को अपने परिवार के लिहाज से, अपने सदस्यों के लिहाज से 5 अलग अलग प्रकार की कुर्बानियाँ, जो लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में दी गई हैं, देनी पड़ती थी अलग अलग पापों के लिए। हालेलुया। जानवरों का लहू केवल इंटरेस्ट की पेमेंट करता था, मूलधन वहीं का वहीं था। तो बैत शमेश के लोगों ने कौन सा पाप किया? बैत शमेश के लोगों ने इस आर्क ऑफ द कवनेंट को ऑर्डिनरी समझा, और उन्होंने सबसे बड़ा अपराध ये किया कि उन्होंने, ये देखिए जो आर्क ऑफ द कवनेंट है, इसके ऊपर मर्सी सीट है, इसके ऊपर लहू है, खून। उन्होंने इस ढक्कन को हटा दिया, इसलिए कि इसके अंदर ऐसे झांक कर देखें आर्क ऑफ द कवनेंट के। और आपको मालूम आर्क ऑफ द कवनेंट के अंदर क्या था? आर्क ऑफ द कवनेंट के अंदर क्या था मालूम आपको? आर्क ऑफ द कवनेंट के अंदर लॉ था, व्यवस्था की 2 टैबलेट थी, व्यवस्था थी परमेश्वर की। उन्होंने इस ढक्कन को हटाया जिसके ऊपर ब्लड था, और ऐसे उन्होंने अंदर देखा, और अंदर परमेश्वर की व्यवस्था थी, परमेश्वर का लॉ था। परमेश्वर की व्यवस्था संपूर्ण है, परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है, परमेश्वर की व्यवस्था में कोई भी घटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर दृष्टि करने की पापी मनुष्य की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर की व्यवस्था को इस प्रायश्चित के ढकने के बगैर नहीं बर्दाश्त कर सकते। परमेश्वर के होली, सेक्रेड, पवित्र लॉ ने, व्यवस्था ने उन 50,070 लोगों को मार दिया, क्योंकि जो व्यवस्था के दंड से, लॉ की पनिशमेंट से बचा रहा था, वो ये ढकना था प्रायश्चित का जिसके ऊपर लहू था। इस लहू को जब हटा के दूर रख दिया तो इस जगह से जजमेंट आ गई उन लोगों के ऊपर।
और वो मर गए। केवल आपको लहू बचाता है, मुझे केवल लहू बचाता है। लहू, यीशु मसीह के लहू के बगैर हमारी कोई खुसूसियत नहीं है। अपने आप को कुछ फन्ने खा मत समझिए आप यीशु मसीह के लहू के बगैर। यीशु मसीह के लहू के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी यीशु मसीह के लहू में सिक्योर है। हमारा इनहेरिटेंस स्वर्ग में यीशु मसीह के लहू में सिक्योर है। हमारी सनशिप यीशु मसीह के लहू के अंदर छिपी है। हमारी रिडेम्पशन यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। हमारी साल्वेशन का पूरी जो योजना यीशु मसीह के लहू के अंदर है। हमारे पवित्र आत्मा के वरदान, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई, हमारा जीवन, हमारा घराना सब लहू के अंदर है। इसलिए इस लहू की मर्सी सीट को अलग मत कीजिए। इस लहू के द्वारा ही आपकी परमेश्वर तक रिसाई है, वरना आप अति पवित्र परमेश्वर यहोवा की हजूरी में जाने के लायक नहीं। ना आप ना मैं। अति पवित्र यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति हमें मार डालेगी अगर हम लहू के बगैर, लहू के बिना वहां जाने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम, ये क्रूस रहित सुसमाचार, ये खून रहित सुसमाचार जो लोग प्रचार कर रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक है। ये सुसमाचार आपको मालूम इलीट लोगों की गॉस्पल है, ग्लोबलिस्ट लोगों का एजेंडा है, ये फ्री मिशनरी लोगों की मोटिवेशनल प्रीचिंग है। ये सुसमाचार नहीं है। ये मोटिवेशनल प्रीचिंग फ्री मेसनरी लोगों की है। अल्बर्ट पाइक की किताबें हैं। ये एसोटेरिक गॉस्पल, एसोटेरिक गॉस्पल, ये जो मिस्टिसिज्म है, ये कबाला का है। ये होवा का सच्चा कलाम नहीं है। ये सटैनिक कबाला की टीचिंग है जो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। ये सुसमाचार यीशु मसीह के लहू के द्वारा रचा गया है। यीशु मसीह के लहू के बगैर आपकी और मेरी कोई मुक्ति नहीं, कोई छुटकारा नहीं, कोई चंगाई नहीं, कोई मिरास नहीं, कोई पहचान नहीं। हालेलुया। उसकी अनंत बाचा का लहू ही हमारे जीवन की धन्य आशा है। डोंट रिमूव दिस लिड और यू विल पेरिश। डोंट रिमूव द लिड ऑफ द मर्सी सीट। दे पेरिश्ड। 50,070 people just vanished in thin air because the anger of the Lord aroused vehemently and God killed them. None can look into the perfect, holy, sacred law of the Lord, for we all are sinners. We have broken His law. There is no one good. आपको मालूम, लोग कहते हैं why bad things happen to good people? But the question is, who is a good people? हमारे में से कौन अच्छा है? वचन में लिखा, there is no one good, none. All are evil. And we all have taken our own path. We all have abandoned the ways of the Lord. वचन में लिखा, तुम्हारे में से कोई भला नहीं और तुम्हारे में किसी का कोई भला काम नहीं. All your good deeds are like filthy rags. Hallelujah. Thank you Jesus. यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू की जय. तो हम यीशु मसीह के लहू के बगैर, यीशु मसीह के लहू के बगैर एक ख्वाब भी नहीं देख सकते परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में आने का. समझ रहे हैं आप? डोंट लेट डेवल फीड टू योर प्राइड. डोंट लेट सेटन स्पीक टू यू एंड टेल यू दैट यू आर समथिंग, दैट यू आर वेरी पेक्यूलियर, वेरी स्पेशल. लेट मी टेल यू, योर ओनली यूनिकनेस इज इन द ब्लड ऑफ जीसस. यीशु मसीह के लहू में ही सब कुछ है. हालेलुया. मैं चाहता हूं कि हम एक वचन पढ़ें. हालेलुया. मैं आपको आइजाया में लेके जाना चाहता हूं, बुक ऑफ प्रॉफिट आइजाया, उसका 53rd चैप्टर. ये जूइश लोगों के लिए फॉरबिडन चैप्टर है. जूज डू नॉट लेट देयर चिल्ड्रन रीड दिस चैप्टर, 53rd चैप्टर, एंड इफ दे एट ऑल लेट देम रीड, दे मेक देयर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. आइजाया 53, यशाया 53 चैप्टर, और मैं उसका आपके लिए पढ़ना चाहता हूं पहले कुछ वचन. सुनिए ध्यान से क्या लिखा है. Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as root out of dry ground. He hath no form nor comeliness. जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, जब यीशु मसीह को सजा दी गई, जब यीशु मसीह गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, हाइड्रोथर्मोसिस उस बीमारी को बोलते हैं जब आपकी ब्लड कैपिलरीज जो आपकी स्किन के नीचे होती हैं वो फट जाती हैं, बस्ट कर जाती हैं, क्योंकि आप एक्सट्रीम
प्रेशर में होते हो तब फट जाती हैं वो, और आपका पसीना और आपका ब्लड दोनों मिक्स होके गिरते हैं भूमि पे। यीशु मसीह का पसीना और ब्लड दोनों गिर रहे थे। आपको मालूम, आदम के पाप के बाद पसीना पैदा हुआ, पहले पसीना नहीं था। There was no sweat in the Garden of Eden. Garden of Eden was a glorious place. It was centrally air conditioned. There was no sweat. बहुत सारे लोग कहते हैं ना जी मैं खून पसीने की रोटी खाता हूँ, घमंड से कहते हैं, लेकिन ये पसीना ही शराब की निशानी है। यीशु मसीह पसीने के पाप को तोड़ने आया। प्रभु ने कहा अब तू यू विल ईट द ब्रेड मेड आउट ऑफ द स्वेट ऑफ योर ब्राउज, अपने पसीने की रोटी खाएगा। पाप के बाद ये कहा प्रभु ने। यीशु मसीह का खून और पसीना पृथ्वी पे गिर रहे थे। यीशु मसीह को जब, मैं उसी के ऊपर आज थोड़ा सा वचन आपको दूंगा, जब मारा गया बुरी तरह, यीशु मसीह एक लोथड़ा लग रहा था मांस का, जैसे एनिमल होता है कोई, वो मनुष्य लग नहीं रहा था। यहाँ पे लिखा है ही हैथ नो फॉर्म नोर कॉमलिनेस, सुंदरता नहीं थी उसके अंदर। और लिखा है हिज विसाज वॉज मार्ड बियॉन्ड एनी ह्यूमन बींग, हिज विसाज वॉज मार्ड बियॉन्ड एनी ह्यूमन बींग। और लिखा है वेन वी शैल सी हिम देयर इज नो ब्यूटी दैट वी शुड डिजायर हिम। इस तरीके उसको पनिशमेंट मिली, मारा गया। ही इज डिस्पाइज्ड एंड रिजेक्टेड ऑफ मैन, ए मैन ऑफ सारो and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. हमने उससे अपने चेहरे छिपा लिए। आपको मालूम यीशु मसीह के सारे चेले भाग गए। हालेलुया। वो अकेला क्रूस पे लटका था, जब उसको अपने दोस्तों की जरूरत थी वो सब भाग गए। They hid their faces from him. हालेलुया। जरा सोचें, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था। एक जवान बेटे की सबसे बड़ी जिल्लत ये होगी कि उसे उसकी माँ के आगे नंगा कर दिया जाए। जो नूर को और जलाल को ओढ़ के रहता था, उसको नंगा कर दिया गया आपके और मेरे लिए। हालेलुया। जरा कल्पना करें, अपनी आंखें बंद करें जरा। हालेलुया। मिसाले बर्रा बेजुबान वो मालिके दोनों जहां। जब वो क्रूस पे लटका है तो सुनिए, मिसाले बर्रा बेजुबान वो मालिके दोनों जहां लटक रहा है नीम जा। नीम जा कहते हैं अधमरे को। लटक रहा है नीम जा, सामने खड़ी है माँ, सामने खड़ी है माँ। ये तख्ताए सलीब पर कौन है लटक रहा। कोई सवाल करता है, यीशु मसीह जब सलीब पे लटका है, पूछता है ये तख्ता है सलीब पे कौन लटक रहा है? कि जिस के सारे जिस्म से खून है टपक रहा, खून है टपक रहा। ये तख्ताए सलीब पे कौन है लटक रहा। कोई सवाल करता है और कोई उसे जवाब देता है। इस गज़ल के अंदर जवाब भी हैं। सवाल है कि कौन लटक रहा तख्ता है सलीब पे तो जवाब क्या मिलता है? वो सर्द की सै रहा ए परवरदिगार,
वो दुआ करता है क्रूस से, ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर, नादान है न दे सजा, ये तख्ता-ए सलीब पर यीशु है लटक रहा। हालेलुया। मैंने आपके लिए पढ़ा यशाया। I couldn't stop myself from singing and crying inside. यहाँ पे लिखा, he is despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Hallelujah. जब कई बार लोग कहते हैं ना, इंसानों को बहुत आदर, सत्कार, उपमा, बड़े ऊंचे पेडिस्टल पे रखते हैं और यीशु मसीह के बराबर लाने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें ये बताता हूँ, ये देखो, ऐसा था मेरा स्वामी। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा? ही इज डिस्पाइज्ड, तुच्छ था वो, रिजेक्टेड, त्यागा था, मैन ऑफ सारो, गमों का इंसान था, एक्विंटेड विद ग्रीफ, दुखों से उसकी पहचान थी। वी हिड एज इट वर आवर फेसेस, उससे लोग अपना शक्ल छिपा लेते थे, उसे देखते नहीं थे। ही वॉज डिस्पाइज्ड, वो तुच्छ जाना गया, बिल्कुल घटिया समझा गया। वी एस्टीम्ड हिम नॉट, हमने उसका कोई आदर नहीं किया। आज बंदे आदर चाहते हैं, इंसान क्रेव करते हैं, एंटाइटलमेंट ढूंढते हैं, अपने नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल लगाते हैं, बहुत शौहरत, बहुत आदर, बहुत सत्कार चाहिए उन्हें। दुनिया के मालिक का मालूम नहीं है क्या हाल है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे आगे चौथा वचन पढ़ें, श्योरली ही हैथ बॉर्न अ ग्रीफ। अब ध्यान से सुनिएगा, व्हाट डिड जीसस डू? ही हैथ बॉर्न अ ग्रीफ। सचमुच उसने क्या किया? ग्रीफ के लिए क्या वर्ड लिखा है? हालेलुया। क्या लिखा भाई और बहनों आपकी बाइबल में? चौथा वचन यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, पंजाबी में है मेरे पास ये बाइबल। सचमुच उसने साडे गम चुक ले ते साडे दुख उठाए, पर असां उसनूं मारिया होया ते परमेश्वर दा कुट्टिया होया ते भन्निया होया समझिया। लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर कर्स है, ही इज रिजेक्टेड बाय गॉड, लेकिन वो क्या कर रहा है? श्योरली ही हैथ बॉर्न आवर ग्रीफ। उसने क्या किया? उसने हमारे ग्रीफ, आपको मालूम सॉरो ग्रीफ में क्या फर्क है? जब आप किसी के जीवन में कोई दुखदायी घटना घटती है तो सॉरो आता है, सॉरो करता है इंसान। वो सॉरो थोड़े समय के लिए होता है, किसी की डेथ हो जाती है बिलवड की या कुछ हो जाता है, सॉरो थोड़े समय के लिए रहता है। लेकिन अगर सॉरो कंटिन्यू करता रहता है तो वो सॉरो एक आत्मा में बदल जाता है और उस आत्मा का नाम है ग्रीफ। ग्रीफ एक इमोशन नहीं है सिर्फ, ग्रीफ एक आत्मा है। ये बंदे को जकड़ लेती है ऐसे आके। आपको मालूम ग्रीफ की वजह से क्या होता है? लोगों के ऊपर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीजेज आते हैं, डिप्रेशन आता है, एक्यूट डिप्रेशन आता है, लोग सो नहीं पाते, नाइटमेयर्स आते हैं उनको, कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, कईयों का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है ग्रीफ की वजह से। ग्रीफ एक गंदी रूह है, उसने सौरव भी उठाए और उसने ग्रीफ भी ले लिए। और आपको मालूम ही हैथ बॉर्न, उसने उठा लिए। उठाने के लिए कौन सा हिब्रू वर्ड है यहाँ पे? उठाने के लिए हिब्रू वर्ड है नासा। सुना आपने अमेरिका में नासा क्या है? स्पेस रिसर्च एजेंसी है अमेरिका की नासा। आपको मालूम जिस बंदे ने इसको नाम दिया था वो यहूदी था। और नासा का मतलब क्या है? लिफ्ट करना। आपको मालूम एयरप्लेन जब उड़ता है, एयरप्लेन सीधा यूं नहीं जाता, एयरप्लेन को मोमेंटम लेना पड़ता है, एयरप्लेन को विंड की ज़रूरत होती है, तो एयरप्लेन रनवे पे भागता है। लेकिन रॉकेट भागता नहीं, रॉकेट ऐसे जाता है। रॉकेट के लिए होता है नासा, मतलब उठा लिए। यीशु मसीह ने नासा कर दिया। आपके और मेरे क्या क्या उठा लिए? सौरव उठा लिए, ग्रीफ उठा लिए।
हालेलुया। लिखा है, श्योरली ही हैथ borne a grief and carried a sorrow, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. We thought that he was rejected by God. We thought that he was under the curse of God. We thought that God is punishing him. We thought that God is afflicting him. God is torturing him. That's what people thought. लेकिन वो क्या कर रहा था? आपके और मेरे सौरों और ग्रीफ को नासा कर रहा था। हालेलुया। ही वॉज ऑप्रेस्ड। वो इमोशनल ट्रॉमा में से होके गुजर रहा था ताकि आपका और मेरा इमोशनल ट्रॉमा वो दूर करे। हालेलुया। आपके और मेरे डिप्रेशन को हटाए, आपकी और मेरी इमोशनल ट्रॉमा, जो हर्ट्स हैं, वूंड्स हैं आपके अंदर, जो आपको ब्रोकन प्रोमिसेस ने दिए हैं, आपको आपके चाहने वालों ने दिए हैं, आपकी सोल के अंदर वूंड्स हैं, ब्लिस्टर्स हैं, आपके अंदर ऐसे घाव हैं जिनमें से अभी भी रिसाव हो रहा है, आपकी साइकी के अंदर ऐसी दरारें पड़ी हैं आपके पास्ट की और रिलेशनशिप की। यीशु मसीह उन्हें हील करता है और आपको अंदर से ब्रांड न्यू करता है। हालेलुया। यीशु मसीह बाहर से आपको रिफॉर्म नहीं करता, यीशु मसीह अंदर से इंटरनली आपको ट्रांसफॉर्म करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मानो लिविटिकस 16 में, लिविटिकस 16 अगर आप पढ़ें तो लिविटिकस 16 बताता है कि ब्लड जो है वो अटोन करता है। ब्लड अटोन्स, ब्लड रिमूव्स, एक्सपंजेस एंड रिमूव्स ऑल द मेमोरी फ्रॉम द हेवनली बुक्स। स्वर्गीय किताबों के अंदर जो कुछ लिखा है आपका पास्ट, ब्लड उसे एक्सपंज कर देता है, धो देता है, मिटा देता है। आपको मालूम, अगर आप वचन को ध्यान से देखेंगे, आप 3 डिमेंशन में पाप करते हैं। एक, आप पाप करते हैं अपने खिलाफ, कुछ ऐसे सिन हैं जो आप कमिट करते हो जिससे आप अपना नुकसान करते हो, जिस तरह सेक्सुअल इमोरालिटी, इट इज़ अ सिन अगेंस्ट योर ओन बॉडी। लेकिन उससे, बिकॉज फॉर सेक्सुअल इमोरालिटी यू हैव अनदर पार्टनर, सो नॉट ओनली दैट यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, यू डिस्ट्रॉय योर पार्टनर ऑल्सो। पर कुछ सिन ऐसे होते हैं जो आप दूसरों के खिलाफ करते हो, दूसरों से उसको नुकसान होता है, और कुछ ऐसे सिन होते हैं जो आप यहोवा परमेश्वर के विरोध में करते हो। राजा दाऊद कहता है, अगेंस्ट यू एंड अगेंस्ट हेवन आई हैव सिन। साम 51 में, ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी। और आपको मालूम, उजाड़ू बेटा जब अपने पिता के पास वापस लौटता है तो अपने पिता से कहता, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है और मैंने हेवन के विरुद्ध में पाप किया है, अब मैं तुम्हारा पुत्र कहलाने के लायक नहीं, इसलिए मुझे नौकर रख लीजिए। आपको मालूम, नौकर के लिए वहाँ कौन सा वर्ड यूज़ किया गया? डायकोनिया, और दूसरी जगह डूलोस। जो डायकोनिया और डूलोस हैं, ये चौथे दर्जे के नौकर होते हैं। इज़राइल में एक नौकर होता है जो मालिक के अंग संग रहता है, अगर मालिक की औलाद ना हो तो वो मालिक का वारिस बनता है। 15 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में इलियाजर के विषय में हमारा पिता इब्राहिम यही बात कहता है। दूसरा एक नौकर होता है जिसे बाइबल में स्टूअर्ड कहा गया है, ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है, ओइकोनोमिया, स्टूअर्ड या मैनेजर। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में हम सबको परमेश्वर के स्टूअर्ड बताता है, हम सब स्टूअर्ड हैं, मैनेजर हैं। ओइकोनोमिया वो ग्रीक वर्ड है जहाँ से वर्ड निकलता है इकानमी, अर्थात एक मैनेजर जो मास्टर की, स्वामी की एस्टेट को चलाता है, पूरा काम देखता है, उससे रेवेन्यू जनरेट करता है। और ये जो इकोनोमिया होता है, स्टूअर्ड होता है, इसके पास पावर्स होती हैं, ये किसी को भी हायर कर सकता है, किसी को भी फायर कर सकता है, और इससे सिर्फ अकाउंट इसका मालिक ले सकता है, और वो भी फसह के दिन, पास ओवर के दिन। पास ओवर के दिन ये नौकर क्या करता है, ऐसे एक बही खाता होता है उस साल का, उसे मुकम्मल तौर पे बंद करता है, उसमें से माँ अपने स्वामी को दिखाता है कितना इनकम हुई, कितनी आउटगोइंग हुई, और एंड में मास्टर के सिग्नेचर ले लेता है। वो इकोनोमिया, इकानमी, स्टूअर्ड। आपको मालूम, यीशु मसीह का भी एक स्टूअर्ड था, वो इकोनोमिया, उसका क्या नाम था? यहूदा इस्करियोती। और फसह का जब दिन आया, फसह के दिन से कुछ दिन पहले उसने अकाउंट लगाया और चांदी के 30 सिक्के कम निकले, वो चोर था। तो आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं जब वो फसह का भोजन करने बैठा? यीशु मसीह उसे कहते हैं, दोस्त जा, जो काम तू करना चाहता है वो कर ले। यीशु मसीह आपको मालूम उसे क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, मेरे दोस्त जा, मुझे बेच ले और अपना वही खाता पूरा कर ले।
आपके और मेरे वही खाते शॉर्ट थे, यीशु मसीह ने अपने आप को बेच के आपके और मेरे खाते वही खाते पूरे किए हैं। दूसरे दर्जे का नौकर होता है इकोनोमिया, स्टूवर्ड उसे अंग्रेजी में कहा गया। तीसरे दर्जे का एक नौकर होता है जिसके विषय में फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 23-24 वचन में लिखा है, वो होता है पैडागोगोस। एक नौकर होता था यहूदी घर में जो अपने स्वामी के बच्चों को मॉरल कहानियाँ सिखाता था, वर्च्यू सिखाता था, पोम सिखाता था, स्टोरी सिखाता था, और उसका काम होता था वो घर से बच्चे को स्कूल ले जाता था जिसका नाम होता था सफ़र, और स्कूल से बच्चे को घर लेके आता था। उसे बोला जाता था पैडागोगोस। आपको मालूम पैडागोगोस ग्रीक वर्ड है और यहीं से वर्ड निकलता है पीडियाट्रिशियन। जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसे पीडियाट्रिशियन बोला जाता है। बाइबल में से सब कुछ निकला है, समझ रहे हैं आप? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ यहीं से निकला है। हालेलुया। तो चौथे दर्जे का एक नौकर होता है, उसे बोला जाता है डूलोस, बंधुआ गुलाम। आपको मालूम वचन में लिखा है यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया और नौकर का स्वरूप लिया। 3 अध्याय फिलिपियों की पत्री 6 वचन से पढ़िएगा। यीशु मसीह जब नौकर बना, आपको मालूम मरकुस की इंजील 9 अध्याय के 45 वचन में यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं मैं सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह जब आए पृथ्वी पे, यीशु मसीह ने परमेश्वर के अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह ने जो भी काम किए इसलिए नहीं किए कि वो परमेश्वर थे। यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो इसलिए किया क्योंकि यीशु मसीह आदम की ज़ात थे, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा की कुव्वत के द्वारा प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 38 वचन में लिखा है कैसे यहोवा पिता ने यीशु मसीह को अभिषेक किया। वो भलाई करता रहा और उन सबको जो दुष्ट आत्मा के हाथों जकड़े थे छुड़ाता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह की ऊर्जा और शक्ति का स्रोत था पवित्र आत्मा। उसने परमेश्वर था, वो हमेशा परमेश्वर रहा। ये नहीं कि परमेश्वरताई कभी यीशु मसीह को छोड़ सकती है, वो हमेशा परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य बना और वो नौकर बना। आपको मालूम कौन सा नौकर बना? डूलोस बना, चौथे दर्जे का नौकर, जो सिर्फ गमछा बांधता है और पाँव धोता है। सेलिब्रिटी नहीं बना, वो बाबा नहीं बना, पापा डैडी नहीं बना, समझ रहे हैं आप? बड़े बड़े टाइटल नहीं लगाए उसने अपने नाम के आगे। यीशु मसीह का नाम यहोशुआ है जो स्वर्ग से आया, और यीशु मसीह के नाम के पीछे लगा है मशाक। आपके नाम के आगे क्या लगा मैंने नहीं रखता, आपके नाम के पीछे क्या है। आपके नाम के आगे तो आप खुद लगाते हो, रेवरेंड, डॉक्टर, बिशप, आर्च बिशप, पापा, मेजर, माइनर, जो भी लगाते जाओ। नाम के पीछे स्वर्ग लगाता है। यहोशुआ के नाम के पीछे मशाक पिता ने लगाया। दैट इज व्हाट मैटर्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा हो। तो मैं आपको वचन देना चाहता हूँ। हालेलुया। आप जल्दी से निकालिए लेवी व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11 वचन, लेविटिकस 17 एंड वर्स नंबर 11। हालेलुया। कई बार रैबिट ट्रेल बहुत लंबी हो जाती है एंड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट। लेविटिकस उसका 17 अध्याय जल्दी से निकालिए, लेविटिकस 17। हालेलुया। और उसका हम पढ़ेंगे 10 वचन। सुनिए क्या कहता प्रभु। एंड व्हाटसो एवर मैन देयर बी of the house of Israel or of stranger that sojourn among you that eateth any manner of blood, it will even set my face against that soul that eateth blood and will cut him off from among his people. प्रभु ने बोला do not eat blood, don't drink blood, but here it is eat blood. Don't eat blood or drink blood. क्यों? 11 वचन पढ़ें। For the life of the flesh is in the blood, क्योंकि शरीर का जीवन किस में है? लहू में है। एंड आई हैव गिवन इट टू यू अपॉन द ऑल्टर टू मेक एन अटोनमेंट फॉर योर सोल, फॉर इट इज़ द ब्लड दैट मेकeth एन अटोनमेंट फॉर द सोल। लेकिन अगर आप ओरिजिनल हिब्रू में पढ़ेंगे, ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट में
इसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है ये। ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है ही एंड आई हैव गिवन, ही एंड आई हैव गिवन इट। टू पर्सन है वहाँ पे, ही एंड आई, यहोवा and his son Jesus. That's what it is if you look into the original Hebrew text. It says, for he and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that maketh an atonement for the soul. कफार जो है, कफार वो ब्लड के अंदर है। वो राल जो लगाई गई नूह की कश्ती को, वो कफार है। बिना कफार के आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। कफार जो है यहां रहती है, कफार यहां आर्क ऑफ द कवनेंट के ऊपर कफार है, ब्लड है। जब बेथ शमेश के लोगों ने कफार को हटा दिया, एंड दे लुक्ड इनटू द लॉ, perfect law of God. They looked into the law of God, and as they looked into the law of God without the blood, they should have looked into the law of God through the blood, but they looked into the law of God without the blood, and the anger of the Lord was aroused, and in a split second 50,000 70 लोग मर गए वहां पे। बेथ शिमेश के 50,000 70 लोग मर गए। आपको मालूम यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा इसराइलियों को? परमेश्वर ने इसराइलियों को बरकत दी, परमेश्वर ने इसराइल को बढ़ाया। आप पढ़ेंगे जब एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय का 5 वचन, वहां लिखा वो 70 लोग थे जब मिस्र में गए। 430 वर्ष में परमेश्वर ने उनको कई हजार गुना बढ़ा दिया, कई हजार। 70 से वो लगभग, कुछ बाइबल स्कॉलर मानते हैं कि वो 24 लाख के करीब थे, कुछ मानते हैं 28 लाख के करीब थे, कुछ कहते हैं 30 लाख के करीब थे, क्योंकि 6 लाख पुरुषों की गिनती थी जो लड़ाई के मैदान में जा सकते हैं। स्त्रियों की गिनती नहीं थी, बुजुर्गों की गिनती नहीं थी, बच्चों की गिनती नहीं थी। अगर 6 लाख पुरुषों की 6 लाख पत्नियां होंगी, 2-2 बच्चे होंगे, तो काउंट करें कितनी जनता होगी, कितनी दुनिया होगी जिन्हें यहोवा परमेश्वर मिस्र में से निकाल के लाया। अब जब यहोवा परमेश्वर मिस्र में से उनको निकाल के ले आया, इतनी बड़ी भीड़ को मिस्र में से, और 10 बवाओं के माहौल में वो लोग रहे हैं। पहली 3 बवाएं सब ने कॉमनली शेयर की हैं, लेकिन बाकी की 7 बवाएं यहोवा ने अपने लोगों पे नहीं आने दी। तो अब परमेश्वर के लिए आपको मालूम सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है? जब मिस्र में है, वो आखिरी रात है, डेथ एंजल जा रहा है, मौत का दूत जा रहा है, जो हर घर के पहलौठे को मारने जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर गॉड इज टू प्रोटेक्ट हिज पीपल दैट नाइट फ्रॉम the angel of death. The angel of death has warrant against every firstborn without discrimination. The only thing that would be their respite and that would be their protection is the blood. तो प्रभु कहता है एक लैम ले लो, टेक 1 लैम। 10th डे को लेना है, निसान के महीने, दैट इज योर फर्स्ट मंथ। जब प्रभु छुटकारा देता है वही पहला महीना है, वही पहला साल है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जूलियन कैलेंडर जो है, ये जो पेगन कैलेंडर है रोम का, ये हमारा कैलेंडर नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, प्रभु ने क्या कहा उन्हें? 10th डे को लैम लेना है। 10th डे जीसस क्राइस्ट गधी के बच्चे पे बैठ कर गया। 10th डे को आपको मालूम क्या हुआ? 70 गुना 7, 70 times multiplied, 70 into 7, God multiplied the sin, the unrighteousness, the iniquity of the people of Israel by 7। 490 साल कर दिया। हालांकि उन्होंने टेंपल बना लिया, लेकिन द रेमिनेंट जो पीछे रह गया, एग्जैक्ट उस परमेश्वर के प्रॉमिस के अनुसार जब 69 वीक पूरे हुए डैनियल के, तो एग्जैक्टली उस दिन, जो दिन प्रभु ने मुकर्रर किया था, गधी के बच्चे पे बैठ के मेमना पहुंच गया। और वचन में लिखा 4 दिन मेमने को घर में रखना, और जब चांद पूरा हो जाए 14वां दिन, उस रात चांद की रात थी, पूरे चांद की, जब चांद अपने शबाब पे हो, पूरे चांद का मतलब फुलनेस ऑफ न्यूनेस, नएपन की फुलनेस, नवीनता की चरम सीमा थी, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। तो वचन में बताया है वही रात थी, प्रभु ने मिस्री इसराइलियों से कहा तुम एक मेमने को लेना और उस मेमने का ब्लड निकालना, उसको ज़िबाक करके, ज़िबाक हिब्रू वर्ड है, और उसके ब्लड को एक बेसिन में लेना और जूफे की डाली की झाड़ू बनाना और अपने घर की चौखट पे इस तरह और इस तरह और इस तरह करके एक निशान लगाना। ये ताब का निशान है। यीशु मसीह का नाम है अलफ एंड ताब।
ये निशान है भाई और बहनों जो आपके मेरे इधर लगेगा, ताब का निशान, इधर इधर और इधर चौखट पे लगा देना, प्रभु ने कहा। और प्रभु ने कहा बड़ी खास बात इसराइलियों से, प्रभु ने कहा वो जो लैम जिसका ब्लड लगाया है उस लैम को लेना, उसे आग पे रोस्ट करना और पूरी की पूरी इसराइली कौम, पूरा घराना, पूरा लैम खा लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। परमेश्वर इसराइलियों को लिविटिकस में बताता है, प्रभु कहता है लैम की फैट नहीं खानी, प्रभु कहता है लैम की किडनी नहीं खानी, लैम का लिवर नहीं खाना, लैम का हार्ट नहीं खाना, अलग अलग इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन इस समय प्रभु ने क्या कहा, पूरे का पूरा लैम क्या करना है, खा लेना। हालेलुया, पूरे का पूरा लैम को खा जाना है। आपको मालूम, परमेश्वर ने सबसे पहले तो इज़राइल को बचाना था एंजल ऑफ डेथ से, तो ब्लड ने बचाया। फिर परमेश्वर के लिए ज़रूरी था कि पूरा इज़राइल हेल्दी हो, हील हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, क्योंकि वो जर्नी जो करनी है उन्होंने, सूखा रेगिस्तान है, ख़तरनाक जर्नी है। उस माहौल के अंदर जो जर्नी करनी, उसके लिए बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहोवा ने क्या कहा, मेमना खा लो, पूरे का पूरा मेमना। वो इलाही मेमना था। उस मेमने को खाया जैसे गुर्दे से गुर्दे परफेक्ट हो गए, हार्ट से हार्ट मुकम्मल हो गया, आँख से आँखें होगी मुकम्मल, स्प्लीन से स्प्लीन हो गई, लिवर से लिवर हो गया। हालेलुया, उस लैम की जो चीज़ खाई, मुकम्मल लैम ने मुकम्मल इसराइलियों की देह को नया कर दिया। आपको मालूम, एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर जॉन मिलर। वो एक थेरेपी की बात करते हैं, सेल थेरेपी की। उसमें वो क्या करते हैं कि लैम के ऑर्गन्स को लेते हैं और पुट देम इन सेलाइन सोल्यूशन, और उसके स्टेम सेल क्रिएट करके लोगों के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जिस जिस ऑर्गन की बीमारी होती है, कमी होती है, उस वही ऑर्गन को लेके इंजेक्ट किया जाता है, लोग सुपर नेचुरली चंगे हो जाते हैं। उस मेमने को पूरा खाना प्रभु ने कहा। उन्होंने पूरा पूरा मेमना खाया। उनमें से किसी के हेडेक नहीं हुई, उनमें से किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं हुआ, किडनी में स्टोन नहीं हुआ, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं हुआ, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हुआ, किसी को हाइपरटेंशन नहीं हुई, किसी का कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ, किसी को न्यूरो प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी की बोन डिस्क जो है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी, देयर वाज नो डायबिटिक, देयर वाज नोबडी हैविंग अर्थराइटिस, देयर वाज नोबडी हैविंग अल्जाइमर, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मेमने को खाया। हालेलुया। और वो कामिल रहे। लगभग 30 लाख, 28 या 30 लाख लोग थे वो। और एक बड़ा कारवां चला। वचन में लिखा उनके ऊपर एक बादल का, जलाली बादल का साया आके ठहरता था। और वचन में लिखा है आग का खंबा उनके ऊपर ठहरता था। वचन में लिखा है एक जलाली चट्टान उड़ के उनके आगे चलती थी और वो चट्टान उन्हें पानी पिलाती थी। और वचन में क्या लिखा है, 78 भजन संहिता का 25 वचन पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा जो मन्ना बरसता था वो मन्ना फरिश्तों का खाना था, वो स्वर्गदूतों का खाना खाते थे। उनकी जूतियाँ घसी नहीं, उनके कपड़े फटे नहीं। जैसे उनके पाँव बढ़े वैसे उनकी जूतियाँ बढ़ी, जैसे उनके शरीर और डील डॉल बढ़ी वैसे उनके कपड़े बढ़े। अलौकिक रीति से प्रभु यहोवा उनके अंग संग था। आप पढ़ेंगे ना वचन, भजन 105 का 37 वचन, वहाँ पे लिखा है वो सोना चांदी लेकर निकले और उनमें से कोई कमज़ोर नहीं था। 105 भजन की 37 आयत पढ़ लीजिएगा। और वचन तो आइज़ाया 53:7 में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होंगे। आइज़ाया 53 पढ़ देता हूँ आपके आगे और फिर मैं एक और वचन पढ़ूंगा। आइज़ाया, यशाया 53 जो मैं पढ़ रहा था अभी, यहाँ पे लिखा बट ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन, ही वॉज ब्रूज फॉर आवर इनिक्विटीज एंड चैस्टाइजमेंट ऑफ आवर पीस वॉज अपॉन हिम, विद हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। यशाया आगे की ओर देख रहा है कि उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे पहला पत्रस 2:24, वहां लिखा विद हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। पत्रस पीछे की ओर देख रहा है क्योंकि क्रॉस घट चुका है। हालेलुया। यशाया आगे की ओर देख रहा है क्योंकि क्रॉस आने वाला है। पत्रस देख रहा है पंतेकुस्त के बाद क्रॉस घट गया है और हम उसके कोड़े खाने से चंगे
हो चुके हैं। आपको मालूम मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको यीशु मसीह के ब्लड के साथ बताना चाह रहा हूँ यीशु मसीह की पीठ पे पड़े कोड़े। यशायाह 37:26 में लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ दूँ, यशायाह नहीं सॉरी, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 का 26 पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। मत्ती 27:26 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती 27 का 26। मत्ती 27 के 26 में लिखा है, देन रिलीज्ड ही बराबस अनटू देम, तब उसने उनके लिए बराबा को छोड़ा। एंड व्हेन ही हैड स्कर्ज्ड जीसस ही डिलीवर्ड हिम टू बी क्रूसिफाइड। यीशु मसीह को स्कर्ज किया गया, कोड़े मारे गए। आपको मालूम, अब मैंने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। वो जो स्कर्ज होती थी उसके अंदर 4 लैशेस थी। कुछ रोमन हिस्टोरियन बताते हैं 9 लैशेस थी, लेकिन ज़्यादा रिलायबल बताते हैं 4 लैशेस थी। और उसके अंदर लोहे के टुकड़े लगे होते थे और सूखी जानवर की हड्डियां लगी होती थी। और मैं आपको कुछ पढ़ के बताना चाहता हूँ। ये मिशना में से है, जूइश लोगों की मिशना एक पुस्तक है, उसके अंदर लिखा है, और एडम क्लार्क की बुक में से लिया है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 2 हैंड्स आर बाउंड टू द पोस्ट एंड देन सर्वेंट ऑफ द सिनेगॉग ईदर पुल्स और टीयर्स ऑफ हिज क्लोथ। कि यीशु मसीह को ऐसे बांध दिया गया एक पोस्ट के साथ, इस तरह था वो, ऐसे मतलब यूं स्टूप कर रहा था, ऐसे ऐसे बांधा और उसके कपड़े खींच दिए जो सिनेगॉग का सर्वेंट था, तो उसकी बॉडी एक्सपोज होगी। और लिखा है ए स्टोन और ए ब्लॉक इज प्लेस्ड बिहाइंड हिम। उसके पीछे एक स्टोन है या एक ब्लॉक है सीमेंट से, पत्थर का, जो उसके पीछे है। ऑन विच द सर्वेंट स्टैंड्स, वो खड़ा होता है सर्वेंट उसके ऊपर। वो यीशु मसीह ऐसे झुका और ऐसे बंधा हुआ है। और लिखा ही होल्ड्स इन हिज हैंड ए स्कर्ज ऑफ लेदर डिवाइडेड इन 4 टेल्स। लंबी लंबी लरें सी हैं चमड़े की, उसके अंदर जानवर की हड्डियां और लोहा लगा हुआ है। लोहे, कुछ लोग कहते हैं लोहे की एम्प्टी बॉल्स होती थी। he who scourges lays 1/3 of the criminal breast, another third on his right shoulder and other on his left। तो वो क्या करता है, कैसे मारा जाता था क्रूस, वो कोड़े कैसे मारे जाते थे? ये जूइश लोगों का कस्टम है। वो 40 नहीं मारते थे, 39 मारते थे, क्योंकि 40 अगर मारे जाएं तो उसके बाद कोई और पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो जो यहूदी थे वो यीशु मसीह को मैक्सिमम टॉर्चर करना चाहते थे। जो फरासीम है, सीड ऑफ द सर्पेंट है, वो वहीं था। सीड ऑफ द सर्पेंट, सीड ऑफ द वुमन जीसस है। सीड ऑफ द सर्पेंट को भी वहां होना चाहिए। फराशीम्स दे वर द सीड ऑफ द सर्पेंट। तो वो कैसे कोड़े मारता था, उसको ऐसे स्प्लिट करता था और मारता था कोड़ा ऐसे यूं पूरी तरह पीठ के ऊपर, और वो कोड़े का अगला जो हिस्सा था इधर आता था, चेस्ट पे बजता था। इधर मारता था, इधर हार्ट पे बजता था, और पीछे पीठ पे बजता था और हार्ट पे बजता था। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है एंड ऑल द वाइल स्टूपिंग एंड मैन स्माइट्स विद ऑल हिज स्ट्रेंथ। पूरी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर से लाके मारता था। किधर? लेफ्ट एंड राइट, और इधर। कैसे लगाया गया ब्लड मेमने का? राइट, लेफ्ट और टॉप पे। हालेलुया। यीशु मसीह वही मेमना है। हालेलुया। राइट, लेफ्ट एंड टॉप, इस तरफ पूरी तरह उसके ऐसे पड़ रहा था। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा उसके उन कोड़ों से तुम चंगे हो चुके हो। अगर परमेश्वर इस्राएल को मिस्र में से छुड़ाते वक्त ही चंगा करता है, बीच में ले जाके नहीं करता, उसी वक्त करता है मेमने के लहू के द्वारा, क्योंकि उनकी हेल्थ और वेलनेस जरूरी है जर्नी के लिए। तो परमेश्वर आपको भी चंगा करता है। आपकी जो हमारी अटोनमेंट है, हालेलुया। अटोनमेंट समझते क्या? कफार। मैंने आपको बोला कफारा, वो जो राल लगाई गई जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 6 वर्स 14, उत्पत्ति 6 के 14 में जो राल लगाई गई, जो कफार है, वो कफार है यीशु मसीह का ब्लड। वो उस समय आपको और मुझे मुकम्मल करता है। हालेलुया। हमें क्या करना भाइयों और बहनों? हमें वी हैव टू आस्क। हालेलुया। क्या लिखा प्रभु के वचन में? याकूब 5 के 14-15 में, बुजुर्गों से कहिए आस्क, वो प्रार्थना करेंगे और रोगी चंगा
हो जाएगा। जैसे वचन बताता है कि हमें क्या करना है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 9-10 वचन में लिखा है कि प्रभु को मुंह से पुकारो, मुंह से अंगीकार करो, दिल में विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो मुंह के अंगीकार और हृदय के विश्वास के कारण तू बचाया जाएगा। यू हैव टू आस्क, और फिर आपको कन्फेस करना है क्या, प्रभु का नाम, हालेलुया। और आपको बिलीव करना अपने हृदय में कि आपने जो मांगा वो आपको मिल गया। आपको मालूम, कई बार लोग प्रार्थना करवाते हैं मुझसे। मैं अभिषेक में होता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना कर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करते मुझे पता लग जाता बंदा चंगा हो गया, लेकिन बंदा आत्मा में नहीं होता। वो जैसे प्रार्थना खत्म हुई फिर मुझे बोलता है, ब्रदर मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। देख रहे हैं आप, प्रभु कह रहा मैंने तुझे अभी चंगा कर दिया, वो कहता है मेरी प्रार्थना की लगातार प्रार्थना करते रहिए, मेरी चंगाई के लिए लगातार प्रार्थना करते। गॉड ऑलरेडी हील्ड हिम, हालेलुया। तो वचन में लिखा है यीशु मसीह विश्वास की प्रार्थना को रिस्पॉन्ड करता है और उसी समय करता है। आप सहमत हो, जो आपने प्रभु से मांगा आपको मिल गया, हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े चंगा करते हैं, यीशु मसीह के कोड़ों में कुदरत है, यीशु मसीह के खून में कुदरत है, हालेलुया। लेट्स कम अंडर द स्ट्रीम ऑफ हिज ब्लड, hallelujah. Let's come under the stream of his blood tonight. Let's come under the covering of the stripes of Jesus. The stripes of Jesus are real. If the stripes are real, so is your healing. Your healing is a reality. Your healing is not a magical formula that may work one time and other time may not. Your healing is a covenant. It's a covenantal reality. God will heal you if you come under the blood of the Lamb and if you bind yourself to the stripes of Jesus. Tonight I am going to pray for the healing. प्रार्थना करूंगा मैं चंगाई के लिए. I am sensing an anointing that would heal people all over the world. Whoever will come under the voice, this is not my voice, this is the voice of the Lord, because I am unleashing the word of the Lord. Whosoever will come under this voice, the Spirit of the Lord is going to heal that person. Let's pray. Send me your prayer request right now. Hallelujah. I'm going to pray right now. Hallelujah. तरलोक सिंह जी ने एक प्रार्थना विनती भेजी है. Hallelujah. What's the name of the person? तरलोक जी, please tell me. I'm going to pray for the healing, anointing to be unleashed now. Lord, I pray for Mr. Tarlok Singh. Father, he mentioned a name. Somebody is in the US who is sick. I pray, Father, that healing anointing will flow over that person right now. There is no distance in the realm of the Spirit. The realm of the Spirit is not limited. And Holy Spirit, you are everywhere, even right now. Touch that person, I pray, in the holy name of Jesus. Hallelujah. And Lord, I pray for another person. किसी ने अभी प्रार्थना विनती भेजी है. Lord, I pray for that person. I'm not finding the name. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I release the healing anointing, whoever is needing healing right now. Father, I pray for Darshan Singh and his family and everything that he does, that you will prosper him, Lord, that you will touch him, that you will bless him in the mighty name of Jesus Christ. I pray for Mangal Thapa's family. Father, I pray for Mr. Vinod Christian's wife Vinodini in Canada. May your healing anointing flow over her. I pray for Angelina Sara, Amit's daughter or wife, I don't know. Lord, I pray for Angelina Sara for your anointing. Father, I pray for Gurdeep Singh's mother. She's sick. I pray that you would heal. Tanuja Seth, Lord, I pray that she will come under the power of the scourges of Jesus Christ right now. Tanuja Seth, be healed in Jesus' name. Rohit Malik, may your mother be healed right now by the blood of the Lamb. I pray for Kailash Kuria and his wife Madhu. I bring them under healing anointing in Jesus' name. I pray for Sarah Sandeep's daughter. Anointing under the scourges of the Lord Jesus. I pray for Ravi Prakash Gupta. I pray for his family, pray for his loved ones. I cover them all under the blood of Jesus. Hallelujah. Pray for Pavan Virk and his family. Lord, I pray for Richa Masi and her father. May you heal her father and mother and all her loved ones. May you keep them under the blood. I pray for her bhajan. I cover her bhajan under the blood. Father, I pray for Avatar's family in Chandigarh. May your hand be upon them in the name of Jesus Christ. Father, I pray for Malkiyat Gill, his son Rex and Joel Gill. I cover them under the blood of Jesus of Nazareth.
Lord, Amit Sam's daughter, I cover her, bless her under the blood. Hallelujah. Sabi Surjit and his family, I bring them under the blood of the Lamb. Father, I pray for Daisy V.S. I pray for her brother Mickey, Father. May he be under the blood. May the power of the scourges of Jesus be unleashed right now. In the mighty name of Jesus, I pray for Sunita Guria Kansawar, Father, for her spiritual growth, Father. In Jesus' name, I pray for Lizzie Christie's mother. May her shoulder be healed in the name of Jesus of Christ. I pray for Pinky. Pinky be healed in the mighty name of Jesus. Nishan Singh be healed in the mighty name of Yehoshua HaMashiach. I pray for Brother Raman Khan's mother. May that lady who loves you be healed. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Abhijit Singh, I release God's anointing upon you in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Lord, we bless your name. Lord, we praise you. Sonia Nar, I cover you under the blood of the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Jasveer Singh, I cover you under the blood of the Lamb. Father, I speak the anointing over Sunita Kaur, over her daughters. I cover them all under the blood. Over Anil Kumar from UK, I cover him and his family under the blood of the Lamb. In the mighty name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं एक एक जन को तेरे खून में छिपाता हूँ, तेरे कफ़ार में छिपा देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरे कफ़ार में, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। तूने मुझे मौत के मुंह से निकाला, सैकड़ों बार निकाला खुदावंद। मेरे लाखों रोगों को चंगा किया और हज़ारों बार किया, लाखों बार किया। तेरा धन्यवाद खुदावंद, क्योंकि तू चंगा करने वाला शाफी है। तेरे नाम की हम महिमा करते हैं। लॉर्ड वी ब्लेस यू, लॉर्ड वी ब्लेस योर होली नेम, ब्लेस योर होली नेम, ब्लेस योर होली नेम। लॉर्ड वी ब्लेस यू। Shalomi Christian, I bless you in the mighty name of Jesus. Brother Emmanuel Sohota, I pray for you. I pray for Eric Sohota, for your whole family. I speak the blessing of the Lord. Sahil, may the hand of the Lord be upon you. प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए। तेरे कोड़ों की कुदरत के नीचे हम जीते हैं, तेरे कफ़ार के नीचे हम रहते हैं खुदावन, तुझे जलाल देते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने लहू के नीचे रखे। स्टे अंडर द ब्लड ऑफ जीसस, डू नॉट मेक एनी ब्रीच, डोंट सिन, डोंट वॉक इन evil ways, walk right under the blood of the Lamb. Hallelujah. You will be protected, you will be kept. Shashi Verma, the Lord bless you. Lalit Mehra, the Lord bless you. Vinod Christian ji, the Lord bless you. Hallelujah. Please share these teachings with others. दूसरों तक पहुंचाइए। The Lord commanded me to teach this pure word of God. And the Lord told me that it has to go all over the world. मेरे सच्चे कलाम को भेज दुनिया में। आप जो भी इसे आगे भेजेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। प्लीज़ मेरे फेसबुक में नए लोगों को भेजिए, जो प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं, प्रभु के भूखे और प्यासे, उनको भेजिए। मैं कुछ लोगों को और निकालूंगा, नए लोगों को बीच में लूँगा, और जुड़िए प्लीज़। एटलीस्ट 1-2 लोगों को नयों को संग में जोड़िए। वी वॉन्ट टू grow this group to several thousands of people, thousands and thousands of people, that thousands and thousands receive this pure teaching of God's word every day. हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के जलाली नाम में। कल 10 बजे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आप सबको अपने लहू में संभाल के रखे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।